Welcome back students. I am Dr. Ameema Shoaib, Assistant Professor, Axis Institute of Planning and Management. अभी तक हम आपसे कस्टमर एनालिटिक्स के बारे में डिस्कशन किया. In this session I am talking to you and discussing with you about retail and advertising analytics, aspects of retail analytics. We talked about market basket analysis, then we talked about our basically lifts, that is being the various combinations of the products that are being purchased together. अब हम नया एस्पेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ द RFM एनालिसिस. वेरी क्विक रिव्यू, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं लेंगे. एज एन MBA स्टूडेंट्स, हाउ यू नीड टू हैव एन ओवरव्यू एंड हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड आपको समझ में आ जाएगा. RFM एनालिसिस इज नथिंग बट अ मार्केटिंग टेक्निक यूज टू क्वांटिटेटिवली रैंक एंड ग्रुप कस्टमर्स. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं कस्टमर्स को. किस बेसिस पे, किसी बेसिस पे करें. जैसे हम सेगमेंटेशंस डिफरेंट बेसिस पे करते हैं, यहाँ पे भी हम क्वांटिटेटिवली जब हम रैंक कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, RFM, दैट इज रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटरी टोटल ऑफ देयर recent transactions to identify the best customers and perform targeted marketing campaigns. यहाँ पे हम RFM किस बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, that is quantitatively rank and group customers, recency, frequency and monetary of total transactions to identify the best customers and perform target marketing campaigns. RFM analysis allows you to segment customers by their frequency and value of purchases, identify those customers who spend most of their money. RFM क्या करता है, जैसे कि हमने पढ़ा, इट्स अ मार्केटिंग टेक्निक. Quantitatively we are ranking and grouping our customers. So when we are ranking and grouping our customers means we are trying to segment our customers by frequency and value of purchases. Frequency, how frequently that, and the value, that is the amount of the money that is being spent on certain kind of purchases. Identify those customers, हमें identify करना है customers को who spent the most of the money. Out of that segment we have to identify वो कौन सा customer है जो कि सबसे ज़्यादा money spend कर रहा है. Now let us have quick review what RFM stands for, that is recency, frequency and monetary value, where R means how long it's been since a customer bought something from you. कब, recency word recent से निकला है, ठीक है. Since how bought something from you. Frequency, how often a customer buys from you. Frequency, कितना frequently वो आपसे purchase कर रहा है. How frequently or how often customer buys some product from you. Then coming to monetary value, the total value of purchases a customer has made. Overall total value that the customer has made, कितनी monetary, कितना amount की purchase customer ने किया है. It's possible to divide the customers in the groups to understand which customers buys lot of things frequently, which few things but frequently, and which haven't bought anything from long time. तो यहाँ पे यानी कि जब हम customers को group कर रहे हैं, customers को हमने group किया, frequently buy few things, कम खरीदा but frequently खरीदा, एंड किसी ने कुछ भी नहीं खरीदा बहुत लंबे टाइम तक के, ठीक है. Only a small percentage of customers respond to general promotional offers. As we are aware, it according to the RFM analysis of various research that have been conducted, only very small percentage of customers respond to general promotional affairs. RFM is an excellent segmentation method for predicting customer responses, improving interactions and increasing the profits. तो यानी कि जब हम RFM की बात कर रहे हैं, RFM क्या है, एक सबसे अच्छा तरीके का सेगमेंटेशन प्रोसेस है. अभी तक के हम सेगमेंटेशन क्या कर रहे थे, जब हम बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात करते हैं या हम मार्केट में प्रोडक्ट्स प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट्स में हो गया डेमोग्राफिक यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने चल रहे हैं, या हम एज फैक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं डेमोग्राफिक में, रीजन वाइज जा रहे हैं, एज वाइज जा रहे हैं, जेंडर वाइज जा रहे हैं. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, RFM, इट्स एन एक्सेलेंट सेगमेंटेशन टेक्निक for predicting customer responses, improving interactions and increasing profits. And the profits eventually, profits को increase करने का यही होता है. RFM uses customer behavior data to determine how to work with each customer group. क्या करता है कि RFM
कस्टमर बिहेवियर डेटा को यूज़ करते हैं, एंड यूजिंग दीज डेटा वी ट्राई टू डिटरमाइन हाउ टू वर्क विद ईच कस्टमर ग्रुप. RFM analysis to predict the response rate and profitability that is being generated by mailing a catalog to a customer. हमने customers को कोई catalog mail करी and we try to get the response from them. The basic idea is that customers who have bought more recently, that is R stands for recency, more often that is frequency, and spent more dollars, यानी कि ज़्यादा पैसा उसमें लगाया, ज़्यादा amount हमने invest किया, that is the monetary value on the products previously, are more likely to order in the future. यहाँ पे RFM basically हमें समझ में आया, previously more likely order in the future. In an RFM analysis, each customer is given a rating of 1 to 5, where 5 is likely to purchase, L1 is equal to less likely to purchase on R, F and M. A score of 5, for example, is given on recency if a customer ranks top 20% on recency, and a score of 1 is given if the customer ranks top 20% on recency. Recency में कितना रिसेंट उसने परचेज किया है, रिसेंटली कितना नियर टाइम में ये चीज़ परचेज की है. देन द कॉम्बिनेशन ऑफ R and F and M that appear to be profitable based on the customer's recent history and receiving the next mailing. परफॉर्मिंग RFM सेगमेंटेशन एंड RFM एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम एक थ्योरेटिकल आइडिया ले लेते हैं किस तरीके से करते हैं. आपको जब एक थ्योरेटिकल आइडिया मिल जाएगा तो इवेंचुअली यू कैन गो अहेड इनटू द एक्सेल शीट एंड कीपिंग दैट बेस इन माइंड. तो स्टेप 1 की जब हम बात करते हैं, द first step in building RFM model is to assign recency, frequency, monetary values to each customer. The raw data doing which should be readily available in the company's CRM or transactional database. यानी कि सिंपल सी बात है, जिसमें हमने RFM लगाना है, ये मॉडल को यूज़ करना है, हमारे पास ट्रांजैक्शन डेटा अवेलेबल होना चाहिए. Recency is simply the amount of time since customers' most recent transactions. It can be in month, it can be in weeks, it can be इवन लाइक आवर्स के बेस में भी हो सकता है, बिजनेस डेज में भी हो सकता है. फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो फ्रीक्वेंसी में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेड बाय द कस्टमर्स ड्यूरिंग दैट डेफिनेट पीरियड, कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन कितना फ्रीक्वेंटली उसने किया है. मॉनिटरी की बात आती है तो टोटल अमाउंट दैट द कस्टमर हैज़ स्पेंट अक्रॉस ऑल ट्रांजैक्शन, वो हम सब अपने स्टेप 1 में करेंगे. देन कम्स द सेकेंड स्टेप. Second step here is to divide the customer list on the basis of tiers, as in various categories of R, F and M using Excel or any other tool that you have. You can use specialized software which basically helps in dividing the customers in 4 tiers, dimensions that each customer will be assigned to one tier in each dimension, as in tier 1 most recent, tier 2 उसके बाद tier 3 एंड लीस्ट रिसेंट टियर 4. यानी कि हमने इसको भी कैटेगराइज कर दिया है. फ्रीक्वेंसी को भी हमने यही किया है, एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली और लास्ट में 4 क्या किया है, ओनली 1 ट्रांजैक्शन. मॉनिटरी की बात आती है, हाईएस्ट स्पेंड एंड लोएस्ट स्पेंड. हमने एक स्केल रखा है और तीनों कैटेगरीज को दैट इज R, F एंड M को हमने 4 डायमेंशंस पे बेसिकली डिवाइड किया, 4 टीयर्स में डिवाइड किया है 3 डायमेंशंस को. दिस रिजल्ट्स इन 64 डिस्टिंक्ट कस्टमर सेगमेंटेशंस, दैट इज 4 into 4 into 4, 4 into 4 into 4. जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूजुअली विच कस्टमर्स विल बी segmented. 3 tiers can also be used resulting in 27 segments. हमने जो 4 लिए हैं हम उसको 3 में भी कर सकते हैं. Using more than 4 however is basically not recommended because कुछ फिर statistical issues आने लगते हैं और क्या कह सकते हैं, errors cripple हो सकते हैं. Then coming to the step 3, the third step is to select customers to whom specific types of communication will be sent based on RFM segments in which they appear. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हमने उसको कैटेगराइज कर लिया है, कैटेगराइज करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है
उन ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को जिनको वी वांट टू सेंड दैट कम्युनिकेशन या ऑन बेस्ड ऑन दी आरएफएम सेगमेंट्स के बेसिस पे ही वी आर गोइंग टू सेंड दी कम्युनिकेशन. दिस इज गोइंग टू बी इन द थर्ड स्टेप. द बेस्ट कस्टमर्स, हाई स्पेंडिंग न्यू कस्टमर्स, लो स्पेंडिंग एक्टिव लॉयल कस्टमर्स एंड चर्नड बेस्ट कस्टमर्स. ये 4 कैटेगरीज हैं हमारी. ठीक है, बेस्ट कस्टमर्स, दिस कंसिस्ट ऑफ दोज कस्टमर्स हु आर फाउंड इन आर टियर 1, एफ टियर 1 एंड एम टियर 1. तो हम इसको एक बार आपको फिर से पीछे ले जाते हैं इस टेबल को, जिसमें कि आपको हम दिखा देते हैं. आर टियर 1 में, एफ टियर 1 में ये कैसे हमारे यूज हो रहे हैं, ये वाले, ये हमने अपने बेस्ट टाइप ऑफ कस्टमर्स में चूज किए हैं. हाई स्पेंडिंग न्यू कस्टमर्स. अब हाई स्पेंडिंग न्यू कस्टमर्स, या इसको हमने एनोटेशन 111, वील यूज दिस एनोटेशन इन गोइंग फॉरवर्ड बेसिकली, जब हमें आगे समझना होगा. हाई स्पेंडिंग न्यू कस्टमर्स, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज कस्टमर्स इन 141, 142. These are customers who transacted only once but very recently they spent a lot. यानी कि 141 high spending new customers. 141 यानी कि रिसेंट में एक ट्रांजैक्शन किया और सबसे ज्यादा किया. इस तरीके से हमने इसको समझा हुआ है. देन लो स्पेंडिंग एक्चुअल एक्टिव लॉयल कस्टमर्स. लो स्पेंडिंग, दिस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स इन सेगमेंट्स 113. अब 113 को समझते हैं, यानी कि 1, 1 एंड 3 रिसेंटली, फ्रीक्वेंटली एंड बहुत ज़्यादा वैल्यू के परचेज नहीं किए, लो स्पेंडिंग है. चर्नड आउट कस्टमर्स की बात आती है. दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज कस्टमर्स इन ग्रुप्स. चर्नड आउट बेस्ट कस्टमर्स है, सॉरी, यहाँ पे 411, 412, मतलब कि काफ़ी दिन, 411 की बात करें, 4 लीस्ट रिसेंट, बहुत दिन पहले, फ्रीक्वेंटली उन्होंने हाईएस्ट परचेजिंग किया था. Marketeers basically should assemble group of customers most relevant for their particular business objectives and organization retention goals. Now coming to the step 4. Step 4 क्या है? This actually goes beyond RFM segmentation itself, that is crafting specific messages that is tailored for each customer group. By focusing on the behavioral patterns of particular groups, RFM marketing allows marketers to communicate with customers in most effective manner. Best customer, उसको हमें communicate कैसे करना है? Should make them feel valued and appreciated. These customers are basically they generate disproportional high percentage of overall revenues for a business. तो हमको उनको कैसे communication करना है on the basis of RFM model. High spending new customers, it's always a good idea basically to carefully incubate all new customers, but because these new customers spend a lot on their first purchase, it's even more important. Low spending active loyal customers, these repeat customers are active and loyal but they are low spenders. So marketing campaign should be planned according to them. They should be made, we as a marketer should make the customers feel valued and incentivize them to increase their spending levels. Churned best customers, churned best customers जो छोड़ चुके हैं हमारे best customers, these are valuable, these were basically the valuable customers who have stopped transacting a long time ago. While it's often challenging to re-engage the churned customers, there can be n numbers of reasons. Like the best customer group, it's important to communicate with them on the basis of the specific preferences as known from the earlier transaction data. अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने RFM एनालिसिस को देखना है. टू बिगिन वी आर गोइंग टू मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ईच ईयर एंड द नंबर ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ परचेज्ड बाय the customers each year. I'll go into the Excel sheet and find out. N4 में हमने क्या किया है, जो हमारा ठीक यहाँ पे क्या है, हमें मैक्स इफ कस्टमर, दिस क्रिएट्स एन
array contains the transaction date if the transaction involves customer 1 and blank otherwise, then max functions find last date of the transaction involves in customer 1. यहाँ पे क्या होता है कि customer 1 ने कौन सी इस फॉर्म डेट के इसके हिसाब से कौन सी डेट को लास्ट ट्रांजैक्शन किया था, हमें ये पता चल जाएगा यूजिंग दिस बेसिकली फंक्शन और द फॉर्मूला, जहाँ पे हमने मैक्स इफ N4 डेट, N4 पे हमारा फर्स्ट कस्टमर है N4 रो में, तो लास्ट डे को उसने कौन सा ट्रांजैक्शन किया था, कौन सी लास्ट डेट को किया था, दैट इज 3/3/21, 3rd of March को किया था. ठीक है. नाउ कमिंग टू डिटरमाइनिंग हाउ ईच कस्टमर्स रैंक R, F एंड M. कॉपी द फॉर्मूला. सिंपली हमें क्या करना है, रैंक्स रिसेंसी, रैंक्स फ्रीक्वेंसी एंड रैंक्स मॉनिटरी वैल्यू के लिए. आई विल शो यू हाउ. रैंक को सिंपली करना है, हमें कहाँ से करना है, ये इसको हम कैसे करेंगे, इफ यू कैन सी, रैंक हमें अपनी इस हिसाब से अपने कस्टमर्स को देनी है. सेम हमने रैंक रिसेंसी में लिया, फिर हमने रैंक फ्रीक्वेंसी में लिया और फिर हमने रैंक मॉनिटरी वैल्यू में लिया. जब हम इसको लाते हैं तो हमारे सामने ये वैल्यूज आ जाती हैं. Now we'll be using the VLOOKUP formula to convert customers ranks R and FM to move to the wanted 1 से 5 तक की rating and be using this VLOOKUP function. अब आप देख सकते हो VLOOKUP में VLOOKUP to rank को हमने यूज किया है. The next step in RFM analysis is to identify RFM combination that is likely to yield profit. The next step is to find the RFM combination. हमें फिर उसके बाद RFM combination भी पता लगाना है. ऐसे ही हमने VLOOKUP फंक्शन रिसेंसी में लगाना है, फिर फ्रीक्वेंसी में लगाना है और फिर अपना जो है आपका मॉनिटरी वैल्यू में लगाना है. उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉलिंग इनटू दैट कैटेगरी. तो हमने क्या किया, जो RFM करके हमारे जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद हमने इवेंचुअली कस्टमर्स जो हमारे उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, हमने ये फॉर्मूला इनपुट किया जो हमारा यहाँ पे हमने इस तरीके से सीक्वेंस किया था. उसके बाद हमने कस्टमर्स की रेटिंग निकाली, नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉलिंग इनटू ईच कैटेगरी ऑफ RFM. फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे टू कंप्यूट द रिस्पॉन्सेस फॉर द RFM कैटेगरी. यहाँ पे फिर हम जब क्या करेंगे, यहाँ पे मेलिंग कैटेगरी के हिसाब से जो रिस्पॉन्सेस हमको मिलने वाले हैं उसके बेसिस पे हम ये फॉर्मूला कंप्यूट करेंगे. इफ एरर फंक्शन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नीडेड टू प्रिवेंट, अगर एक कोई भी सेल में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो वो उसको ऑटोमेटिकली प्रिवेंट कर देगा, एल्स हमारी वैल्यूज़ गलत हो सकती हैं. यूजिंग द एक्सेल कंडीशनिंग फॉर्मूला ऑप्शन we would highlight all the RFM combinations that is yielding response rate of less than 5%. हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये कंडीशनिंग फंक्शन है इसमें इसको हम यूज़ करेंगे. फ्रॉम द होम टैब बेसिकली ये बताया गया है कि कहाँ से आपको कंडीशनिंग फंक्शन मिल सकता है. इसमें क्या करेंगे, डायलॉग्स बॉक्स एंटर में जाएंगे, व्हेन कॉपीड रेंज इवैल्यूएट यू कैन यूज़ ये फॉर्मूला एज एन एग्जाम्पल बेसिकली दिया गया है. न्यू रूल में जाके आपको बेसिकली डिटरमाइन करना है कि किस तरीके से है. जब आप यहाँ पे कंडीशनल में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, न्यू रूल में यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ पे आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना है और उसके बाद जब आप ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिज़ल्ट आ जाएगा.
यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, इसीलिए ये वैल्यूज़ जो हैं हाईलाइट हो गई हैं। टू फिनिश बेसिकली हम उसको ऑल RFM रिस्पॉन्स रेट ऑफ एटलीस्ट लेस देन 5% आर बेसिकली हाईलाइटेड। आप देख सकते हो जो ये येलो में हाईलाइटेड है, ये रिस्पॉन्स रेट ऑफ लेस देन 5% आर बेसिकली हाईलाइटेड। तो टू कंडक्ट RFM एनालिसिस ईच कस्टमर इज बेसिकली क्लासिफाइड on 1 से 5 scale of RFM monetary value. A score of 5 for example is given on recency if a customer ranks in the top 20. Score of 1 is given if the customer ranks in bottom 20 on recency. The response rate for each 125 combination is calculated. Based on these response rates you may mail the RFM combination basically whose response rate exceeds the break even level. अभी हम आपको इस एक्सेल में ये भी चीज़ दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसको हमने यूज़ किया है। वंस वी गेट दिस ऑटोमेटिकली जब हम रिस्पॉन्स रेट की बात करते हैं इस तरीके से हमारा रिजल्ट्स आ जाते हैं। एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली वी यूज़ RFM एनालिसिस टू identify and segment those set of customers, and segmenting those set of customers basically help in generating better profits and deciding on the customers जो कि हमसे मिस हो गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स हैं उनको हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं टू मेक ऑल द कस्टमर्स फील वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शनल डेटा that is available. As I have already said and stated, जो बेस्ट कस्टमर्स हैं, जो हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स हैं, जो लो स्पेंडिंग बट एक्टिव लॉयल कस्टमर्स हैं एंड बेस्ट churned out customers हैं। तो what we can do is basically we can use these information to assemble them, to take decisions on them, and these particularly would help in the organization and retention goals. And what happens इसमें ये होता है कि जब हम behavioral patterns हमें पता चल जाते हैं and these helps the marketers to communicate with the customers in an effective way। जो हमने एक्सेल कैलकुलेट किया है, अब हमने अपने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स को निकाल लिया है। जब हमने अपने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स को निकाल लिया, हमें पता चल चुका है कि हमारी कैटेगरी बेस्ट कैटेगरी में कौन सा है रिसेंटली करने वाले, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेज सकते हैं। तो व्हेन कम्युनिकेटिंग पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजेंगे तो दे वुड फील मोर वैल्यूड देन हाई स्पेंडिंग न्यू कस्टमर्स की बात आई थी जब, तो जब ये कस्टमर्स हैं टू मेक देम फील वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड, व्हाट वी कैन गिव देम इज वी कैन प्रोवाइड देम विद इंसेंटिव्स सो दैट दे कैन कंटिन्यू विद इंटरैक्टिंग विद द ब्रांड्स। हमें उनको कनेक्शन नहीं तोड़ना है। देन उसी रिजल्ट्स को देखते हैं, लोएस्ट स्पेंडिंग एक्टिव लॉयल कस्टमर्स की बात आई, जब हमें वो रिजल्ट्स मिल गए लोएस्ट स्पेंडिंग एक्टिव लॉयल कस्टमर्स के, तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ ऑफन कि हमें रिवॉर्ड करना चाहिए उनको स्पेशल ऑफर्स से। दीज आर बेसिकली द स्ट्रैटेजीज दैट आर बीइंग यूज्ड बाय मार्केटियर्स टू कीप आवर कस्टमर्स अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड, एंड जो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है बेसिकली अबाउट दैट पर्टिकुलर ब्रांड वो बहुत पॉजिटिव होता है। इट कैन बी थ्रू सोशल नेटवर्क, इट कैन बी थ्रू पीयर्स, इट कैन बी थ्रू एन नंबर्स इंटरैक्शंस, और इवन थ्रू ऑब्जर्वेशंस। आप खुद भी लाइक यूजुअली आप किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हो। देन जो हमारे बेस्ट कस्टमर्स हैं उन जिनका हमसे एसोसिएशन ख़त्म हो गया, अभी हमें पता चल चुका है कि यूजिंग एक्सेल की कौन से हमारे कस्टमर्स थे जो हमारे बेस्ट कस्टमर्स थे, बहुत हाई वैल्यूड थे, बट वो अब हमारे साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट वेरियस रीजंस कि ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, बेसिस ऑन द स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस, उनके क्या प्रेफरेंसेस रहे हैं ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, उसके बेस पे हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड दीज बेसिकली हेल्प इन communicating and strategizing the marketing efforts and achieve the goals of the organization, and at the end
increase the profits. I hope I have made it bit clear to you all, and this would help you in gaining more insights on RFM analysis. Thank you.